Jai Gurudev, dear students. Children, you know we have completed our chapter number 1, My Family, and in this chapter I have taught you about the different types of families like joint family and nuclear family, which is also called small family and big family. Okay, under this chapter we have studied about the different relations and how we looking alike with our parents and different type of our relatives, so what we call them and how we share our feelings with them. So all these things we have already studied, and in the last class I have explained you about these exercises of your book. Okay, so hope you have written all the exercises, you have filled the right answers in your book. Okay, so children, today I'll give you new words of this chapter and also question answers. Okay, so let's see. Dear students, one thing you keep it in your mind, that whenever you write these new words in your notebook, then always remember, I have written in this way, but you don't write like this. Okay, you have to write each word 2 times. Okay, twice you have to write each word. हर वर्ड को आपको 2 बार लिखना है. ओके, ऐसे जैसे इस साइड आपको सारे वर्ड्स एक साइड पे लिखने हैं और सेंटर में लाइन ड्रॉ करोगे और लाइन ड्रॉ करके इसी वर्ड को एक बार दोबारा इस साइड लिखना है. ओके, सो दिस थिंग you don't forget. Always you write new words in this way. So when we start writing, write chapter number 1 first here, and better you write date also here, where date column is there you have to write date. जिस दिन आप लिख रहे हो उस दिन की डेट यहाँ पे आप मेंशन करोगे. एंड चैप्टर नंबर 1 एक लाइन में लिखिए. बेटर है कि आप इसी लाइन से स्टार्ट करिए. उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप लिखिए नेम ऑफ द चैप्टर, माय फैमिली. देन न्यू वर्ड्स, नेक्स्ट हेडिंग आपकी रहेगी न्यू वर्ड्स. So new words of this chapter are, first is tradition, tradition, tradition. And second is customs, customs. ओके, जो ट्रेडिशन हमारे होते हैं, जो हम बहुत पीढ़ियों से हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो बहुत से रीति रिवाजों को फॉलो करते आ रहे हैं, तो वो हमारे ट्रेडिशन कहलाते हैं. ओके, सो कस्टम भी हमारे जो हम रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं इन ट्रेडिशन को मानने के लिए, वो हमारे कस्टम्स होते हैं. ओके, मीन्स दीज बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर. एंड थर्ड इज न्यूक्लियर, NUCLEAR, न्यूक्लियर. न्यूक्लियर children, you know, it is a type of family when parents are living with you only. Means when mother, father and their children live together, that small family is called as nuclear family. So fourth is
admire, ADMIRE, admire. Okay, and fifth one is CHORES, chores. Sixth is TRIPLETS, triplets. Seventh word is TWINS, twins. Eighth word is GRANDPARENTS, grandparents. Ninth word is BOARDING, boarding. Tenth word is DISABILITIES, disabilities. ओके, किसी भी बॉडी पार्ट के अच्छे से वर्क ना करने से जो भी हमारे या किसी भी पर्सन में कमी होती है, या हम बोल सकते हैं कि वो लैकिंग है उसकी बॉडी में, उसको बोलते हैं डिसेबिलिटी. जैसे किसी की आईज जो हैं, अगर वो अच्छे से वर्क नहीं करती हैं या वर्क करना बंद कर दें तो वो पर्सन ब्लाइंड हो जाते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो डिसेबिलिटी. ओके, और अगर किसी के एक्सीडेंटली किसी के लेग्स या किसी की आर्म्स जो हैं वो रिमूव हो जाती है बॉडी से, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, वो डिसेबल पर्सन है, वो डिसेबिलिटी है उस पर्सन में. ओके, सो चिल्ड्रन, दीज आर द 10 वर्ड्स. और 10 वर्ड्स के बाद जो 11th वर्ड है मैंने इस साइड लिखा है, बट आप ऐसे नहीं लिखोगे. आपको पूरे वर्ड एक ही लाइन में एक के नीचे एक लिखना है. ओके, क्योंकि आपको एक बार और रिपीट करके यहाँ पे लिखने हैं. तो 11th वर्ड यू राइट हियर. 11th वर्ड इज बिहेवियर, BEHAVIOUR, behavior. 12th word is KNOWLEDGE, knowledge. And 13th word is ANNIVERSARIES, anniversaries. 14th word is CHRISTMAS, Christmas. 15th word is PONGAL, Pongal. And 16th word is GURPURAB, Gurpurab. 17th word is FESTIVITIES, festivities. Children, festivities are also called festivals. ओके, जितने त्योहार होते हैं उनको हम ये उसी को डिस्क्राइब करने के लिए आपकी बुक में फेस्टिविटीज वर्ड को यूज़ किया. नेक्स्ट 18th वर्ड इज रिलेशनशिप, RELATIONSHIP, relationship. 19th word is OCCASIONS,
ओकेजन्स। चिल्ड्रन, ओकेजन्स मैंने आपको बताया था कि ओकेजन्स क्या होते हैं। दीज आर द स्पेशल मोमेंट्स, और वी कैन से जो स्पेशल हमारे ऐसे मौके होते हैं जिनमें हम कुछ स्पेशल करते हैं, स्पेशल सेलिब्रेशंस प्लान करते हैं। तो ओकेजन्स में आपका बर्थडे भी हो सकता है, आपके घर में किसी की एनिवर्सरी हो वो भी हम बोल सकते हैं, या कोई भी हमारा जो रिलीजियस फेस्टिवल है वो भी हो सकता है। ओके, सो दीज आर कॉल्ड ओकेजन्स। सो चिल्ड्रन, आफ्टर दीज न्यू वर्ड्स, नाउ you have to write question answers. Okay children, I think now you all have managed your books. अगर आपके पास बुक्स हैं तो इट्स ओके, अगर बुक्स नहीं हैं तो मैं बुक की एक पिक जो है वो इस पीडीएफ में आपको क्वेश्चंस की भी भेज दूंगी, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ आंसर्स लिखे हुए हैं। ओके, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हुए हैं, वो मैं बुक से रीड करती जा रही हूँ और वो आप बुक से ही लिखोगे। ओके, सो लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स। चिल्ड्रन, बिफोर राइटिंग क्वेश्चन आंसर्स, फर्स्ट you should write heading. Okay, so here you write answer the following, या जैसे भी आपकी बुक में दिया होता है वो भी आप लिख सकते हो, और अगर ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं भी लिखना है, you should write simply question answers. Okay, heading, but don't forget to write headings. And जितनी भी आप हेडिंग्स या साइड हेडिंग लिखते हो उन सबको आपको अंडरलाइन ज़रूर करना है। ओके, इट शुड लुक नाइस एंड नीट, एंड वेन एवर यू राइट एनी साइड हेडिंग और हेडिंग, यू लीव वन लाइन बिलो इट। जब भी हेडिंग या साइड हेडिंग लिखना है तो आपको एक लाइन उसके नीचे वाली छोड़ देनी है। अंडरस्टूड? एंड यूज ऑलवेज स्केल व्हेन यू ड्रॉ एनी लाइन. Yes, so now let's start our question answers. First question I am reading from the book. You can see here. First question is, what is a nuclear family? So children, मैंने आपको बताया था कि स्मॉल फैमिली जो होती है उसी को हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, जिसमें हमारे पेरेंट्स एंड उनके चिल्ड्रन जो हैं वो ही एक साथ रहते हैं। ओके, सो लेट्स सी द आंसर। अ फैमिली इन विच चिल्ड्रन लिव विद देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली. ओके, सो चिल्ड्रन, व्हाट इज अ न्यूक्लियर फैमिली? A family in which children live with their parents, जिसमें बच्चे अपने पेरेंट्स के सिर्फ साथ रहते हैं, उस टाइप की फैमिली को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फैमिली. ओके, सो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज, what things do we learn in our family? हम कौन सी चीज़ें अपनी फैमिली में रह के सीखते हैं? ओके, सो सेकंड आंसर इज, वी लर्न फॉलोइंग थिंग्स. हम ये नीचे वाली जो मैंने आपको ये दी हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो हम अपनी फैमिली से सीखते हैं. दीज आर गुड मैनर्स and good habits, to share work and feelings, to respect
love each other. See, हम अपनी फैमिली से क्या सीखते हैं? फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया उन्होंने कि हम गुड मैनर्स सीखते हैं, हम गुड हैबिट्स सीखते हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसी से कैसे बिहेव करना चाहिए और कैसे हमें अपनी जो वे ऑफ टॉकिंग है वो हमारा कैसा होना चाहिए, दूसरों से बिहेवियर कैसा होना चाहिए. दीज ऑल वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली. ओके. एंड सेकेंड इज टू शेयर वर्क एंड फीलिंग्स. तो हम ये भी सीखते हैं अपनी फैमिली में रह के कि हमें एक दूसरे के साथ वर्क कैसे शेयर करना चाहिए, कि मिलजुल के वर्क करना चाहिए और हमें जो भी खुशी हो या दुख हो हमें एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए. सो थर्ड इज टू रिस्पेक्ट लव ईच अदर. इसमें कॉमा लगाया है, आप इसमें एंड भी लिख सकते हो. ओके. टू लव एंड you should write and is more correct. Okay. So to respect and love each other. हम ये भी फैमिली में रह के सीखते हैं कि हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट कैसे करनी है. जो बड़े लोग होते हैं, एल्डर्स होते हैं आपके घर में, उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जो छोटे होते हैं या हमारे इक्वल एज के होते हैं उनसे प्यार करना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए. ओके. So this is answer number 2. So next let's we see the question number 3. What is the difference between twins and triplets? Children, इसमें क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि ट्विंस और ट्रिपलेट्स में क्या डिफरेंस होता है. मैंने आपको बताया था कि ट्विंस जो दो बेबी अगर एक ही टाइम पे बॉर्न होते हैं तो वो ट्विंस कहलाते हैं, और अगर 3 बेबी एक टाइम पे बॉर्न होते हैं एक ही मदर से तो उसको बोलते हैं ट्रिपलेट्स. ओके. सो व्हाट इज द sorry, before this answer I want to tell you one more point is left of previous question, previous answer जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था. ये 3 पॉइंट हमने इस साइड लिखे हैं, एक पॉइंट हमारा नेक्स्ट पेज पे था वो छूट गया, वो आप देख लीजिए. टू हेल्प वन एंड अदर मीन्स हमें एक दूसरे की हेल्प भी करनी चाहिए. ओके. ये आपके पिछले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसके आंसर में आपको ऐड करना है कि फैमिली में रह के हम एक दूसरे की हेल्प करना भी सीख जाते हैं. So let's come on the next answer. Answer number 3, twins and triplets. Twins are the 2 babies who born at same time. Twins क्या होते हैं? जब 2 बेबीज एक साथ बॉर्न होते हैं एक ही टाइम पे तो उनको बोलते हैं वो ट्विंस हैं. ओके. एंड ट्रिपलेट्स आर द 3 बेबीज हु बॉर्न एट सेम टाइम. सो ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? जो अगर 3 बेबीज एक ही साथ बॉर्न होते हैं तो उनको बोलते हैं ट्रिपलेट्स. ओके चिल्ड्रन. सो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं अब. व्हाट इज अ क्वेश्चन नंबर 4? यू कैन सी हियर. हाउ इज अ फैमिली इम्पॉर्टेंट? ओके. हमारी फैमिली क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, कैसे इम्पॉर्टेंट है? ओके. सो आंसर नंबर 4 इज इन फैमिली वी लव एंड केयर for each other.
मीन्स हमारे लिए हमारी फैमिली क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी फैमिली में सब कोई एक दूसरे से प्यार और एक दूसरे की केयर करता है. ओके. सेकंड, वी गेट गुड एजुकेशन बाय लिविंग इन अ फैमिली. हम अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं और लेते हैं, इसलिए भी फैमिली इम्पॉर्टेंट है. देन थर्ड पॉइंट, वी ग्रो अप वेल. हम बहुत अच्छे से बड़े हो जाते हैं और ग्रो हो जाते हैं और एक अच्छे इंसान बन जाते हैं व्हेन वी लिव इन अ फैमिली. सो दैट्स व्हाई फैमिली इज important for us. Okay. And next question number 5 is, why is the family called our first school? Children, फैमिली को हम अपना फर्स्ट स्कूल क्यों कहते हैं? ओके. सो आंसर ऑफ दिस इज, see here, answer number 5. We learn many things first from our family. So here what they mentioned that हम अपनी फैमिली से बहुत सारी चीज़ें सबसे पहले अपनी फैमिली से ही सीखते हैं. ओके. सो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि हमारी फैमिली जो है वो हमारा फर्स्ट स्कूल है. ओके. यस. सो आफ्टर राइटिंग दिस वी लर्न मैनी थिंग्स फर्स्ट फ्रॉम आवर फैमिली. देन यू राइट, देयरफॉर family is called our first school. So हम बहुत सारी चीज़ें सबसे पहले अपनी फैमिली से ही सीखते हैं, इसलिए फैमिली हमारा फर्स्ट स्कूल होता है. या हम बोल सकते हैं कि फैमिली को इसीलिए फर्स्ट स्कूल कहा जाता है. सो चिल्ड्रन, व्हेन यू राइट दिस फर्स्ट स्कूल को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख लेना. ओके. सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स विच आर गिवन इन योर बुक. ओके. क्वेश्चंस, आंसर ऑफ those questions I have given you which they have written in your book. So after that आपको कुछ एक्सरसाइज आप अपनी बुक में भी लिखनी है जो मैंने जो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. और आपको ये आ भी सकती है. वैसे तो आपको बुक से भी सारी एक्सरसाइज लर्न करनी ही है क्योंकि वो भी आएगी. ओके. बट व्हाट इज यू हैव टू राइट इन योर कॉपी more that I am giving you. First is one word answers. आपको ये वन वर्ड आंसर जो हैं जिनका आंसर एक वर्ड में आप लिखोगे वो आप हेडिंग पहले लिख लोगे, उसके बाद उसको अंडरलाइन करना है और एक लाइन छोड़ के फिर लिखना. फर्स्ट स्टेटमेंट लिखनी स्टार्ट करनी है. माय पेरेंटल ग्रैंडफादर इज माय फादर्स डैश. डैश में क्या लिखोगे? पेरेंट्स. अच्छा देखिए, मेरे पापा के जो पेरेंटल ग्रैंड फादर, मतलब मेरे जो पेरेंटल ग्रैंडफादर हैं, आपके पेरेंटल ग्रैंडफादर कौन होते हैं? दादा दादी. ओके. सॉरी, ग्रैंडफादर दिया है तो यहाँ पे दादा आएंगे. अगर ग्रैंड पेरेंट्स लिखा हो तो वो दादा दादी दोनों हो जाते हैं. पेरेंटल मीन्स पापा के. तो आपके पापा के आपके जो
ग्रैंडफादर हैं या आपके दादाजी हैं वो आपके पापा के क्या लगते हैं, वो पेरेंट्स भी आप यहाँ लिख सकते हो, या मोर करेक्टली यू शुड राइट फादर। ओके, आपके दादाजी आपके पापा के क्या हैं, फादर हैं। ओके, सो फादर इज द करेक्ट वर्ड। My mother's brother is my dash। आपकी मम्मी के जो भाई हैं यानी आपके जो मामा जी हैं वो आपके क्या लगते हैं, अंकल। ओके, एंड माय मैटरनल ग्रैंडमदर इज माय मदर्स डैश। आपकी जो मैटरनल ग्रैंडमदर कौन होगी, नानी। आपकी नानी जो है वो आपकी मम्मी की क्या है, मदर। ओके, सो फोर्थ इज माय अंकल्स डॉटर इज माय डैश। आपके अंकल की जो बेटी है वो आपकी क्या है, कज़न। Okay, so children, after this fifth one, my mother's sister son is my cousin। means मेरी मम्मा की जो सिस्टर हैं मतलब आपकी जो मौसी हैं उनका बेटा आपका क्या है, वो भी आपका कज़न ही है। ओके, सो चिल्ड्रन, आफ्टर दिस matching or match the column you can write. You have to write matching and learn it. Matching में क्या लिखना है आपको, I have given you 5 words here and 5 words this side, and you have to match all the 5 words with each other. So first is 2 babies. Second word is 3 babies. Third word is small family. Fourth is big family. And fifth is maternal grandparents। मतलब मम्मी के जो मम्मी हमारी जो मम्मा होती हैं, मदर हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारे मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स है। मतलब नाना नानी को हम क्या बोलेंगे, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, एंड सेकेंड कॉलम में आप देखिए, पेरेंट्स ऑफ आवर मदर, न्यूक्लियर फैमिली, ट्रिपलेट्स, ट्विंस, जॉइंट फैमिली। सो चिल्ड्रन, मैचिंग जब भी आप करते हो, मैंने देखा है छोटी क्लासेस में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जनरली मैचिंग में आप क्या करते हो, लाइन ड्रॉ कर देते हो, ऐसे करके ऐसे मैच करते हो, ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग मेथड। आपको ऐसे नहीं करना है। मैचिंग मैंने क्लास 2 में भी आपको सिखाई थी कि आपको नंबरिंग से मैच करना है। ओके, यू हैव टू पुट नंबर्स। हाउ टू पुट नंबर्स, आई विल टेल यू जस्ट नाउ। 2 बेबीज, आपको मैंने बताया था 2 बेबीज क्या होते हैं, ट्विंस। ओके, सो ट्विंस के साथ ये फर्स्ट वाला मैच कर रहा है तो नंबरिंग हम इसकी यूज करते हैं। ओके, सो फर्स्ट नंबर वी राइट हियर इन फ्रंट ऑफ ट्विंस, ऐसे आप नंबरिंग लिखोगे। देन 3 बेबीज, 3 बेबीज क्या होते हैं, ट्रिपलेट्स। तो सेकेंड वी राइट इन फ्रंट ऑफ ट्रिपलेट्स, क्योंकि ये देखिए सेकेंड वाला क्या है, 3 बेबीज वाला है तो उसमें ट्रिपलेट्स। थर्ड क्या है, स्मॉल फैमिली। स्मॉल फैमिली क्या है, ये थर्ड नंबर हम कहाँ लिखेंगे, स्मॉल फैमिली को हम दूसरा नेम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली। सो थर्ड वी राइट हियर। एंड फोर्थ इज अ बिग फैमिली। सो बिग फैमिली का दूसरा नेम क्या है, जॉइंट फैमिली। सो हियर यू राइट नंबर 4।
एंड लास्ट इज मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब हमारे मम्मा के पेरेंट्स, तो पेरेंट्स ऑफ आर मदर। ये आगे प्लेस नहीं है, अगर आगे प्लेस हो तो उसके सामने आप लिखो, और अगर नहीं है तो इसके नीचे आप लिख सकते हो लाइक दिस। ओके, दिस इज द 5th नंबर, बिकॉज हियर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स 5th नंबर पे, तो हियर यू हैव टू राइट number 5. So children, this is all about the matching, match the columns, and लास्ट में आपको मैं एक एक्टिविटी दे रही हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड। आपको क्या करना है, स्टिक पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। बेटा आपको क्या करना है, एक पेज पे, अगर आपकी कॉपी प्रैक्टिकल कॉपी है, मतलब एक प्लेन पेज है या एक लाइनिंग वाला पेज है, तो आप प्लेन पेज पे ये एक्टिविटी कर लेना। अगर सेम ऐसी जैसे मैंने कॉपी यूज़ की है, अगर ऐसी कॉपी आपकी है, अब मुझे नहीं पता आपको स्कूल से कैसी मिली है, अगर ऐसी कॉपी है तो आप क्या करोगे, लाइनिंग वाले पेज पे ही ये पूरे क्वेश्चन आंसर्स और ये सब लिखने के बाद, मैचिंग लिखने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे फुल पेज यूज़ करोगे। उसके लिए इसमें आपको अपने फैमिली मेंबर्स की फ़ोटो स्टिक करना है, और जो भी फैमिली मेंबर की आप फ़ोटो स्टिक करोगे उसका आप रिलेशन नीचे लिखोगे। ओके, कैसे, जैसे आपने मान लो कि सबसे पहले आपने ऊपर सपोज जैसे ये प्लेन पेज है, ठीक है, इसमें यहाँ पे अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ ही रहते हैं तो सपोज यहाँ पे आपने अपने पापा की फ़ोटो चिपकाई, तो पापा की फ़ोटो के नीचे आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पापा का नाम नहीं लिखोगे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फादर। ओके, ऐसे। फिर यहाँ पे आप अपनी मम्मा की फ़ोटो स्टिक करोगे, तो यहाँ पे आप फ़ोटो चिपकाने के बाद आप क्या लिखोगे, यहाँ पे मदर। ओके, फ़ोटोज़ तो बेटा सबके घर में होती ही हैं, आप ऐसे अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स की फ़ोटोज़ यहाँ पे स्टिक करोगे। ओके, और ये एक्टिविटी क्योंकि अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो अगर आपके पास फ़ोटोग्राफ नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। आपको ये एक्टिविटी जब भी, उसके लिए पेज आप ज़रूर छोड़ दीजिएगा, और ये हेडिंग लिख के उस पेज को आप छोड़ोगे, एक्टिविटी 1। ओके, और उसके बाद ये आप हेडिंग लिख देना कि स्टिक पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। ये टॉप पे आप उस पेज के ऊपर सबसे टॉप पे लिखोगे, और उसके बाद फिर आप उसके लिए प्लेस छोड़ देना। जब भी आपको पिक्चर्स मिलें, अगर अवेलेबल हैं घर में तो आप स्टिक कर लीजिए, अगर नहीं है तो जब भी आपको मिले आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। ओके, हर एक्टिविटी के बेटा आपके मार्क्स रहेंगे, और ये आपकी कॉपी में हमें कंप्लीट चाहिए। अंडरस्टूड? सो विद दिस आई कंक्लूड माय क्लास, and for the next time we will start our chapter number 2. So by the time you write your work and complete your work and learn question answers and exercises also. So Jai Gurudev to all of you.